Hello student, today we learn function of control key, जिसको शॉर्ट में CTRL की बोलते हैं, जो कीबोर्ड में आता है. You can see the image of CTRL key in your keyboard. So what is the use of CTRL key? Control key is used by pressing it in combination with other keys to perform secondary functions. तो कंट्रोल की का यूज जो है हम किसी अन्य की के साथ जब हम करते हैं तो उस की का जो है सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म होता है, यानी वो एक ओरिजिनल जो काम कर रहा था उससे अलग हट के वो फंक्शन करने लगता है. तो जैसे आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स जब हम यूज करते हैं तो उनके फंक्शंस सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होते हैं. तो अगेन कंट्रोल की इज यूज्ड बाय प्रेसिंग इट इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज to perform secondary functions. First, Ctrl plus A, shortcut key used to select all text. You know everyone, when we use control, press the control key and then press A, select all text. Next key, Ctrl plus B, used to bold selected text. This key combination is used to bold the selected text. Next, Ctrl plus C, this shortcut key used to copy any selected text. Ctrl plus D, open font window in MS Word. MS Word में font window को open करने के लिए हम करते हैं. Ctrl plus E, align text center. जो भी हम selected text है उसको जो है उसको center में align करता है. Ctrl plus F, this option used to open find center. Ctrl plus G, go to a specific page or bookmark, find and replace dialog box open. जब भी हम Ctrl plus G यूज करते हैं तो find and replace का dialog box ओपन हो जाता है, जहाँ से हम किसी भी स्पेसिफिक पेज या बुकमार्क पर हम पहुँच सकते हैं. नेक्स्ट है Ctrl plus H, this is also do like a Ctrl plus J, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस इन वर्ड. तो वर्ड में जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, जहाँ से हम टेक्स्ट को जो है हम फाइंड करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो एवरी शॉर्टकट की फंक्शन एज अ डेमो. हियर आई हैव अ वन वर्ड पेज and going to do first Ctrl plus A. What is the work of Ctrl plus A shortcut key? Just press the Ctrl key and press alphabet A. Then you select all the file of that page. This is the work of Ctrl A. Ctrl A, select the all file or folders in the documents. And next shortcut key is Ctrl B. First you select any line या any word and just press Ctrl and press B. That particular selected character or selected word या sentence you can see here bold in comparison to other letters. Again, if you again press Ctrl plus B, it will be normal. Press Ctrl plus B, the selected object will be bold. Ctrl D again in normal state. Now next shortcut key is Ctrl plus C. This key is used to copy the selected text. If you want to copy this selected line, just select this line and press Ctrl key and then press C. The selected text or file document copy, and where you want to copy this selected text, go there, put the pointer and press Ctrl plus V. You can see the same line paste here. This is the copy, and use Ctrl V to paste. You can also use just right click
you can find paste option. Just click on paste option. You see, once again पेस्ट कॉपी सेलेक्टेड कॉपी जो है सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको क्या मैंने पेस्ट कर दिया था. दिस इज द वर्क ऑफ कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस डी, ओपन फॉन्ट विंडोज इन एमएस वर्ड. व्हेन वी प्रेस कंट्रोल प्लस डी, you can see here one dialog box will open, font dialog box. In this dialog box we can change font style, font size, strikes, double strikes. There are so many properties are there. We can select according to our need. We can increase the size of font, selected font. So this is the font window which come after pressing Ctrl plus D. Next control is Ctrl plus E, align text center. Okay, this is the line. Just I select this and press Ctrl plus E. When I press Ctrl plus E, the selected text come in middle of the paper. You can see. Again I press Ctrl plus E, the text come in original position. Then if you want to put any selected text in a center, just press Ctrl plus E. That selected text will become in middle of the paper. After that, next shortcut key is Ctrl plus F. Open find window. Open find window. Ctrl plus F. Press Ctrl key and then press F. Then you can see you find open find window. See here, yes, I'm going to click here. I want to find anything from this. If you want to U, here you, I want to find U, just type YOU. You can see where we find U highlighted. इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल में जहाँ जहाँ भी यू है वो क्या है, वो सेलेक्टेड हो गया. इस तरह कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं चेंज, CHANG चेंज, तो चेंज डॉक्यूमेंट आपको फाइल में चेंज जहाँ जहाँ भी होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा. तो दिस कमांड Ctrl plus F, ओपन फाइंड विंडो टू सर्च एनी स्पेशल वर्ड कैरेक्टर from your document. Now the next shortcut key is Ctrl plus H. In Ctrl plus H, E alignment, open find, go. Ctrl plus G, go to the specific page or bookmark. यानी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा Ctrl plus G से. आते हैं तो इसका भी देखते हैं. कंट्रोल प्रेस किया, आफ्टर दैट जी, तो देखेंगे व्हेन वी प्रेस Ctrl plus G, वन स्मॉल विंडो ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस. देयर आर three tabs, find, replace and go to. In go to you can find page number, section, line, bookmarks, comment, footnotes. If you want to line search, if you want to go line number 5 in this document, type, enter the line number 5 and go to. You can see here my pointer is come just after 5 line, 1 2 3 4 and 5. तो मेरा पॉइंटर क्या है, 5 लाइन पर आ गया. इसी तरह अगर यहाँ पर हम 7 करते हैं एंड गो टू, माई माउस पॉइंटर come at the position of 7, 4 5 6 7 9. So with the help of find and replace, you can go to the specific page number, section, line, bookmarks, comment, yeah, footnote. And also in this window you can find any particular word replace. If you want any word mistake and you want to change all mistake word,
at a time, then you can use replace option. Now the next shortcut key is Control H, open, find and replace in Word. This is the also same. Control plus H also use find and replace window for the same purpose. ओके तो अभी हम लोग जो है कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल एस तक के जो सभी शॉर्टकट की को हमने करके देख लिया है. नाउ इन नेक्स्ट पेज, एच के बाद आई, कंट्रोल के साथ आई का यूज करते हैं तो क्या होता है. कंट्रोल के पास जेड का यानी ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स का हम बताएंगे कि कंट्रोल के साथ यूज होने पर उसका जो है फंक्शंस क्या होता है. तो कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की यूज फॉर इटैलिसाइज सेलेक्टेड टेक्स्ट. जब किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर देता है यानी समथिंग बेंड. कंट्रोल प्लस जे, सेट सेलेक्टेड टेक्स्ट जस्टिफाई अलाइन. या जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं वो जस्टिफाई कर देता है यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सभी लाइनों को क्या करता है, सेम कर देता है. कंट्रोल प्लस के, क्रिएट हाइपरलिंक फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड में जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको जो है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट में हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस के करते ही वो जो है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किसी भी एक लिंक क्रिएट करता है. उस लिंक तो चाहे अपने फाइल से या किसी फ़ोटो से कनेक्ट कर देंगे और जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट खुल कर आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल. कंट्रोल प्लस एल यूज टू सेट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट अलाइन. तो अब ये जो भी हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको लेफ्ट साइड में पोजिशनेट करने के लिए हम कंट्रोल उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक करते ही वो किसी दूसरे साइड में या सेंटर में हो या राइट साइड में हो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा. नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट. या लेफ्ट से क्या होता है, पैराग्राफ्स को शिफ्ट करता है राइट साइड में. कंट्रोल प्लस एन, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड. कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं एमएस वर्ड में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो तो हम शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस एन करके हम ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ, ओपन अ फाइल इन मोस्ट प्रोग्राम. तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स में फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं. कंट्रोल पी शॉर्टकट की यूज टू ओपन अ प्रिंट विंडोज. यू कैन आल्सो यूज कंट्रोल शिफ्ट F12 टू ओपन प्रिंट विंडो. तो कंट्रोल प्लस पी करने से हमें जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रिंट का जो है विंडोज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और हम अपने हिसाब से कितने पेजेस चाहिए सेट करके प्रिंट कर देते हैं. तो कंट्रोल पी इज यूज टू ओपन अ प्रिंट विंडो. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस क्यू. इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस क्यू यूज टू रिमूव द पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग. पैराग्राफ्स में जो भी हम फॉर्मेटिंग किए रहते हैं और एक बार में सभी पैराग्राफ्स के फॉर्मेटिंग को रिमूव करना होता है तो हम उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएंगे. और किसी किसी प्रोग्राम्स में कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करके हम प्रोग्राम्स को क्लोज या क्विट करने के लिए भी करते हैं. नेक्स्ट की है शॉर्टकट की क्यू के बाद आर. कंट्रोल प्लस आर, यूज टू राइट अलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट. किसी भी हाईलाइटेड टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं. लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं. ठीक है. और उसको बीचों बीच में जस्टिफाई करने के लिए जो भी हम लाइनें हैं वो लेफ्ट और राइट से सेम हो तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं. तो जितने भी अभी हमने शॉर्टकट की पढ़ा है यहाँ पर इसको हम करके देखते हैं वन बाई वन. कंट्रोल प्लस आई से I go to this is my work file, document file. तो first we do control plus I, italicize selected text. किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको इटैलिसाइज करना है. देखिए हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द कंट्रोल की एंड देन प्रेस I. You can see here the selected character will be bent right side.
ये करेक्टर जो है राइट साइड में कुछ बेंड तिरछा हो गया है, इसको बोलते हैं इटैलिसाइज। तो इस तरह हम इटैलिसाइज कर दिया। अगेन अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल+I करते हैं तो कम इन ओरिजिनल मोड में अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अगेन कंट्रोल+I टू मेक इज इटैलिसाइज। दिस इज द कंट्रोल+I एंड आफ्टर दैट शॉर्टकट की नेक्स्ट कंट्रोल+J सेट सेलेक्टेड टेक्स्ट जस्टिफाई अलाइन। अब जैसे कि उसको जस्टिफाई अलाइन करना है तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है लाइनें हैं वो कोई छोटा है कोई बड़ा है। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में तो लाइनें सब सेम होता है, लेकिन जो राइट साइड में तो लाइनें आगे पीछे होता है। इसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं कंट्रोल+J। देखिए यहाँ पर जो जस्टिफाई के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है ना जस्टिफाई कंट्रोल+J, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल+J। आप देखेंगे लाइनों को जो है राइट साइड में भी लाइनों को एक जैसे कर दिया है। जैसे कि लेफ्ट साइड में लाइनें एक साइड पैरेलल में है, यहाँ पर भी लाइनें क्या एक साइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। अगेन यू प्रेस कंट्रोल+J, तो एज यूजुअल जैसे लाइन था जिगजैग छोटा बड़ा उसको ऐसे कर दिया। कंट्रोल+J करने से ही वो लाइन को जस्टिफाई कर देता है, सभी लाइनों को सेम कर देता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो दिस इज द जस्टिफाई कमांड। नेक्स्ट कंट्रोल+K क्रिएट अ हाइपरलिंक फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट जो है शॉर्टकट की है कंट्रोल+K क्रिएट हाइपरलिंक फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसको हम देखते हैं, कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो हमने एक टेक्स्ट बनाया फ़ोटो, इसको हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल+K। अब यह हमको इंसर्ट हाइपरलिंक का एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें जो है जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हाइपरलिंक बनाना है, हम चले जाते हैं इसमें डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर एक फ़ोटो है, बहुत सारे फ़ोटो हैं, कोई एक फ़ोटो को हम इसमें अटैच कर देते हैं a.jpg। ठीक है, मैंने इसको लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो फ़ोटो जो हमने टेक्स्ट लिया है इस पर एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। कैसे पता चलेगा, जैसे आप इस पर ले जाते हैं माउस पॉइंटर को तो दिखा है कंट्रोल+क्लिक टू फॉलो द लिंक। जो हमने लिंक बनाया हाइपरलिंक बनाया है उसको काम करने के लिए हमको पहले कंट्रोल की को क्या करना, प्रेस करके रखते रहना है, और जस्ट जब माउस पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाएंगे तो माउस पॉइंटर का जो है क्या शेप चेंज हो जा रहा है। हैंड देख रहे हैं आप, हैंड साइड हो गया है। जैसे ही फोटो के ऊपर कंट्रोल की को हम प्रेस किए हुए हैं और फोटो के ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो इसका माउस का पॉइंटर चेंज हो गया। जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पर, जैसे हमने लेफ्ट क्लिक किया तो हमने जो हाइपरलिंक से जोड़ा था जिस फाइल को या फ़ोटो को वो हमारे सामने आ गया। यू कैन सी हियर, ये फ़ोटो में दिखा रहा है जिसको आप हाइपरलिंक के थ्रू ने क्या किया था, ऐड किया था। तो इस तरह यू कैन आल्सो क्रिएट हाइपरलिंक यूजिंग शॉर्टकट की कंट्रोल+K। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल+L सेट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट अलाइन। अब लेफ्ट अलाइन में सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना है, कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट हम ले लेते हैं। मैंने लिख दिया राम। अब यहाँ पे ये देखेंगे राम तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में सेलेक्टेड है। ये दिस इज द लेफ्ट अलाइन, दिस इज द राइट अलाइन एंड दिस इज द सेंटर। ठीक है, तो राम जो लेफ्ट अलाइन करना है, पहले सबसे पहले इसको हम राइट अलाइन करके देखते हैं। कंट्रोल+R राइट अलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट, कंट्रोल+R करते हैं तो अब देखेंगे कि राम जो लेफ्ट साइड में था सीधे राइट साइड में आ गया। अब इसको राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और L पर प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। तो दिस इज द लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। हम किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है या सिर्फ राइट से लेफ्ट की शिफ्ट करना है तो कंट्रोल L लेफ्ट के लिए और राइट के लिए कंट्रोल+R की का शॉर्टकट की यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की है इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। यह कंट्रोल+M शॉर्टकट की है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, इसको लेफ्ट साइड में इंडेंट करने के लिए कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और M को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे हमने एक बार प्रेस किया तो लेफ्ट साइड से वो शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर। अगेन हम कंट्रोल+M किया थोड़ा और शिफ्ट हो गया। ठीक है,
उसको एज यूजुअल स्थिति में लाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार में कि यहाँ पर जो है कीज दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से भी हम इसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की में हम Ctrl+M का यूज करते हैं। नेक्स्ट Ctrl+N क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही Ctrl+N करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है। एक न्यू डॉक्यूमेंट खुलने के लिए Ctrl+N जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया जिस पर हम दोबारा एक कोई भी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो Ctrl+N यूज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है Ctrl+P ओपन अ प्रिंट विंडो। तो प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने ये जो लिखा है इसको हमको प्रिंट लेना है, तो हमको शॉर्टकट में फाइल में न जाकर हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे, P दबा देंगे तो हमारे पास प्रिंट का विंडो ओपन आ गया। और यहाँ से हम जो नंबर ऑफ पेजेस कितना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं सेट, और यहाँ से हम अपना प्रिंट आउट, प्रिंटर अगर लगा रहेगा उस पर हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर को ओके कर देंगे तो हमारा प्रिंट आउट या यहाँ पर जो प्रिंट व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से निकल जाएगा। तो Ctrl+P से क्या होता है, हमारा प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। शॉर्टकट में एक और भी है प्रिंट का डायलॉग ओपन करने के लिए, वो है Ctrl+Shift+F12। कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस F12। उसके बाद भी आपका जो है प्रिंट के लिए जो विंडो होती है वो भी ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओपनिंग हो गया, Ctrl+Q इन MS वर्ड। Ctrl+Q यूज टू रिमूव अ पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग। जो भी हमने पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग किए रहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिमूव एंड सेट एज यूजुअल इन प्रीवियस देन यूज Ctrl+Q। तो इसको भी देख लेते करके, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को लेते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, Ctrl+M करके ऐसे फॉर्मेटिंग कर दी। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग कर किए हैं इसको एज यूजुअल लाना है, तो कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और Q को प्रेस कर देंगे। एक ही बार में जो भी हमने फॉर्मेटिंग जो किया था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो Ctrl+Q यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+R राइट अलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट। ये हमने पहले भी बता दिया कि Ctrl+L से जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, Ctrl+R से सेलेक्टेड या हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इन दिस वीडियो वी लर्न Ctrl+A to R तक के जो है शॉर्टकट कीज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो सीखेंगे। Thank you for watching more videos. Please go to my YouTube channel Ranjit Sir Edu. In playlist there are so many videos related to computer, math, EVS. Please watch video, like and subscribe. Thank you.